Hello students. Now today we will discuss obviously 10th class chapter 3rd 3.4 exercise 3.4 10th class chapter 3 exercise 3.4 question number 2. Question number 2. Now see, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 2. फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी इक्वल्स टू 1. इट बिकम्स हाफ, वो हाफ हो जाएगी. फ्रैक्शन क्या होगी, ये सेकंड स्टेटमेंट है, फ्रैक्शन हाफ हो जाएगी इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड किया जाए तो यहाँ से हम स्टेटमेंट बनाएंगे. तो स्टेटमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करेंगे let the fraction is x upon y where x is numerator and y is denominator. Now according to question सबसे पहले क्या कहा गया है, अगर इतनी स्टेटमेंट पढ़े हम, फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर. ये हमारी फ्रैक्शन x अपॉन y. अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, द इक्वेशन रिड्यूसेस टू 1. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1. तो इससे पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड. ये जाके माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा. x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1. इक्वेशन सॉल्व x y इधर प्लस माइनस इधर माइनस y माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2. दैट्स इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक है, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से शुरू हो रही है जहाँ पे फर्स्ट खत्म हुई यहाँ तक. इट बिकम्स 1.5. सो द फ्रैक्शन बिकम्स 1.5 if we only add 1 to the denominator, if we add only 1 to the denominator, no need to add anything in the numerator because it is not said in the question. In the question it is said that only 1 is added to the denominator, then fraction becomes 1 by 2. Now cross multiply, 2x is equal to y plus 1. So equation is equal to 2x minus y is equal to 1. That's the second equation. Now you can easily see that by the use of the elimination method that we have done in our previous video, we have to apply elimination method and find the value of xy. Now we have two equations, x minus y equals to minus 2 and 2x minus y equals to minus 1. Now what is our target? Our target is to make the coefficient of any variable same. Of any variable. अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे y वेरिएबल दोनों में है तो दोनों का कोफिशिएंट 1 है, -1 -1. दोनों का कोफिशिएंट क्या है, -1. तो इसका मतलब हमें कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है. हमने क्या करना है, जस्ट अगर कोफिशिएंट सेम हो तो हम क्या करते थे, जस्ट सब्ट्रैक्ट. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2. तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, then we have to change the sign. This will discard. Y is cut out. Plus 1 and minus 2x. Minus x is equal to minus 2 and minus 1. Minus 3. So x comes to 3. तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3. Now put x is equal to 3
इन इक्वेशन, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो. लेट इट बी पुट इन इक्वेशन नंबर 1, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. x की जगह पे आ गया +3, सॉरी, minus y is equal to -2. So minus y is equal to -2 and -3, that's a -5. So y is equal to 5. Now got the value of x is equal to 3 and y is equal to 5. Now how to represent a fraction? A fraction is always represented in x upon y. Now fraction is represented in the form of x upon y. We know the value of x, we know the value of y. So put the value of x and y that you obtained after solving the equation. So x value is 3 and y value is 5. So that's the answer. 3 upon 5 is the fraction. Clear? Second part of this question. 5 years ago, सर क्वेश्चन वही होते हैं बार बार, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किए थे 5 years ago like this. तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होंगे, पैटर्न वही रहेगा. ठीक है, बस एक क्वेश्चन चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं. तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले लेट द प्रेजेंट एज, देखते हैं पहले क्वेश्चन में कौन कौन है. 5 years ago नीरू, वन इज नूरी, सॉरी नूरी, एंड सेकेंड इज Sonu. Let the present age of Noori be x years and let the present age of Sonu be y years. Now 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago means in past. 5 years ago, 5 साल पहले. सोनूज एज, सॉरी फर्स्ट इज नूरी. नूरी एज x minus 5. सोनू एज y minus 5. Now what is the statement? Is Noori was 5 साल पहले, 5 साल पहले जितनी नूरी की एज थी, नूरी was 3 times, नूरी was, नूरी की एज क्या थी, x minus 5. सो यहां आ जाएगा x minus 5. was means equal to thrice, thrice means 3 times as old as सोनू. सोनू कितना था, x माइनस सोनू y माइनस 5. तो देखो ये इक्वेशन बन गई. नूरी x माइनस 5, वाज रिप्रेजेंट द इक्वल टू, थ्राइस मीन्स 3 एंड सोनू एज ऑफ सोनू इज y माइनस 5. सो इट बिकम्स द इक्वेशन x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 y माइनस 5. That's the first equation. Solve this. -15 and +5 -10. That's equation number 1. Second equation. In second equation, 10 years later, and this is not 10, this is 10. 10 years later. There's a mistake. It's a 10 years later. टेन ईयर्स लेटर मीन्स फ्यूचर. तो 10 साल बाद. प्रेजेंट एज कितनी है, x. सो नूरी एज आफ्टर 10 years is x plus 10 and Sonu age is y plus 10. Sonu age is y plus 10. So according to question, अब स्टेटमेंट देखेंगे उसके अकॉर्डिंग कैसे जाएगी. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ये नूरी विल बी मीन्स फ्यूचर
नूरी, नूरी की एज कितनी है? x प्लस 10, x प्लस 10. नूरी will be means equal to twice means 2 times as old as सोनू. सोनू से सोनू कितना है? y प्लस 10. So Noori age will be means equal to twice means 2 times as old as Sonu. Sonu की age कितनी है उस टाइम पे? y plus 10. So it becomes a second equation. So second equation is x plus 10 is equal to 2 times y plus 10. Now solve this equation. That is x plus 10 equals to 2y minus plus 20. That becomes x minus 2y equals to 20 minus 10. That's a 10. Equation number 2. That's equation number 2. Now अब एलिमिनेशन मेथड लगा के x और y की वैल्यू निकालेंगे तो वही कंडीशंस लगेंगी. पहले हमने कोफिशिएंट सेम बनाने. बच्चों अगर ध्यान से देखें x का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1, तो हमें कोफिशिएंट सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी x का. हमने क्या करना है? अब साइन अलग देखने हैं. यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस. अगर दोनों साइन सेम है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. जो से मर्जी इक्वेशन पहले लिख लो. आदत यही होती है आमतौर पे सभी की, यही आदत होती है जो पहले लिख ली, जो सेकंड पे लिख ली. अब साइन चेंज करेंगे. साइन चेंज करने बार बार शो इसीलिए करता हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए बात. ये भी साइन डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी साइन डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी साइन डिस्कार्ड हो जाएगा. जो नए साइन लगे हैं वो अप्लाई होंगे. माइनस 3y प्लस 2y बिकम्स माइनस y. माइनस 10 एंड माइनस 10 माइनस 20 माइनस माइनस y इज इक्वल टू 20. एक चीज याद रखना, गलती से भी अगर y की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि एज की बात कर रहे हैं और एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती. तो इसीलिए याद रखना x और y दोनों की वैल्यू क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी. जीरो भी नहीं आ सकता क्योंकि हो सकता है किसी की एज जीरो हो, नहीं हो सकता. तो इसीलिए याद रखना x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव. या फिर ये कह सकता हूँ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होगी. ये भी नहीं हो सकता कि फ्रैक्शन में किसी की एज सुनिए कभी 1.5 हो. नहीं, एज या तो 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ही होती है. तो आंसर क्या आएगा? नेचुरल नंबर. एज है यहाँ पे, एज के टाइम पे. नाउ पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं. x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10. x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10. So x is equal to 60 उधर जाके माइनस हो गया. It becomes a 50. So x is 50. So the present age of Noori B 50 years because the x represent the Noori and the x value is 50, and the present age of Sonu is, that's why 20 years. चेक कर लो. ओके, नेक्स्ट. थर्ड पार्ट बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें कंसेप्ट समझाना उनके पास अभी इस वीडियो में इतना टाइम नहीं है. नेक्स्ट वीडियो में करते हैं थर्ड वाले को. तो पहले करते हैं फोर्थ पार्ट. मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw 2000 rupees. मीना went to a bank, मीना बैंक में गई, withdraw 2000 rupees, ने 2000 rupees withdraw की. she asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note.
उसने कैशियर से ये कहा कि मुझे 2000 रुपीज़ चाहिए, पर मुझे नोट 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ वाले ही देना सिर्फ। मीना गोट 25 नोट्स टू ऑल, उसे टोटल 25 नोट्स मिले, मतलब 15 और 100 नोट्स वाले मिला के टोटल 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ द 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। उसे 50 के कितने मिले, 25 में से 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे। तो हम क्या करेंगे, पहले यही लेट करेंगे बच्चों, जो निकालना होता है ना वही लेट करना है, याद रखना। सो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट be x and let the number of 100 rupees note be y. Now according to question, अब यहाँ से दो स्टेटमेंट्स बनेंगी। पहली स्टेटमेंट बनना होगा इससे, मीनू गोट 25 नोट्स इन, 25 नोट्स इन ऑल। अब देखो हमने क्या किया, नंबर ऑफ 50 नोट्स, 50 रुपीज के कितने नोट्स मिले उसे टोटल x, 100 रुपीज के कितने नोट्स मिले उसे टोटल y। तो इसका मतलब दोनों को मिला के उसे टोटल 25 नोट्स मिले, क्योंकि 25 नोट्स उसे बैंक से मिले थे, और ये टोटल x 50 के नोट्स हैं, y टोटल 100 के नोट्स हैं, दोनों को मिला के 25 ही होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों नोट्स को मिला के ये टोटल नोट्स ही होगी, दोनों को मिला के 25 नोट्स ही मिले उसे। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे हम, विड्रॉ रुपीज 2000, उसने टोटल 2000 रुपीज क्या किए, विड्रॉ किए। अब देखो उसे एक्स नोट्स किसके मिले थे, 50 रुपीज के। हम एक नोट 50 का तो 50 रुपीज, दो नोट 50 के हुए तो 2 इंटू 50 100 रुपीज, अगर तीन नोट 50 के होते तो 3 इंटू 50 150 रुपीज। तो वैसे ही एक्स नोट किसके मिले, 50 रुपीज के, तो इसका मतलब 50 इंटू एक्स, 50x मीन्स ये कॉस्ट होगी 50 नोट्स वालों की। वाई नोट्स किसके मिले, 100 के, तो इसका मतलब 100 वाई। तो इसका मतलब देखो, अगर एक नोट 50 का मिला 50 रुपीज बन जाएगा, दो नोट मिले हुए तो 100 रुपीज, तीन नोट मिले हुए तो 150 रुपीज। वैसे ही इसका बन जाएगा टोटल उसे कितनी पेमेंट मिली, 2000। अब हमने सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट किसी का सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चाहे एक्स का कोफिशिएंट सेम बना लो चाहे वाई का, चाहे फर्स्ट इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई करके एक्स कोफिशिएंट से मिला लो, चाहे 100 से मल्टीप्लाई करके इसका कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50x प्लस 50y इक्वल्स टू 25 इंटू 50। तो ये इक्वेशन बन गई 50x प्लस 50y इक्वल्स टू 1250। दैट्स इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, 50 एंड 50, दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट सेम है 50 एंड 50। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इनका साइन अलग है, सॉरी साइन सेम है। तो यहाँ आएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, सॉरी 2, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। वैसे बच्चों इस इक्वेशन को इजी भी किया जा सकता था, कैसे, देखो अगर मैं इसमें से 50 कॉमन निकाल लेता, दूसरे तरीके से करते हैं वो इससे ज़्यादा आसान है। मान लो यहाँ पे 50 कॉमन निकाल लेता मैं इस इक्वेशन से, सेकंड वाली से 50 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000। तो 50 से ये कट गया, कितना आया 400। तो इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इक्वल्स टू 400। ये ज़्यादा इजी थी, यहाँ पे मुझे किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इक्वेशन की वैल्यू सेम आ गई। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रोसीजर को एक बार डिस्कार्ड कर देते हैं, ये ज़्यादा इजी रहा।
तो इससे इधर आ गए हमने यहाँ से 50 कॉमन निकाल लिया। 50 कॉमन निकाल के हमारी इक्वेशन बन गई x + 2y = 400। अब देखो दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर किया जाए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंपेयर करें हम, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम है, तो हमें डायरेक्ट माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये बन जाएगा x + y = 25 एंड x + 2y = 400। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, x वैल्यू कट हो गई, माइनस y = 50 से क्या हो रहा है, -50 से किया ये आ गया -15 माइनस y = 50। एक चीज यहाँ भी याद रखना, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि नंबर ऑफ नोट्स कभी नहीं हो सकता तुम्हें -3 नोट्स मिले, -4 नोट्स मिले या 0 नोट मिले, कभी नहीं हो सकता। पॉजिटिव आंसर आएगा इसका भी। y की वैल्यू देखते हैं, पुट y = 15 इन इक्वेशन 1, तो x + 15 = 25, so x = 25 minus 15 that is 10। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई तुम लोगों के पास, 10। तो देखो टोटल 25 नोट्स हो गए, 15 और 10 25 हो गए। तो इसका मतलब सो द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 50 किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से, x के कितने 10 नोट्स। द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू कितने 15, सो आ गया 15 नोट्स। क्लियर बच्चों, ऐसे भी कर सकते थे, ये गलत नहीं था प्रोसीजर, इससे इक्वेशन लेंथी हो जाती है और कुछ नहीं है। प्रोसीजर ठीक है, ऐसा नहीं है ये गलत है, इससे लेंथी हो जाती है। मैंने शॉर्टकट बना दिया, 50 कॉमन निकाल के इक्वेशन छोटी हो गई, देखो कैलकुलेशन छोटी रहेगी, उसमें कैलकुलेशन 12 और 50 तक जा रही थी, तो इससे इक्वेशन लेंथी हो जाती, आंसर सेम आना था, आंसर में कोई फर्क नहीं आना था, इससे इक्वेशन छोटी हो गई और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।